तो महानगरों के बड़ी खबर के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आपको महानगरों की हर छोटी बड़ी खबर हम इस बुलेटिन में दिखाते हैं। इस बुलेटिन में दिखाएंगे, मैं हूं सचिन। आपको दिखाएंगे कहां और कैसे एक लेडी कांस्टेबल ने मंत्री के बेटे की सड़क पर क्लास लगा दी। वहीं मुंबई एडिशन में आपको बताएंगे कोरोना संक्रमण से लड़ रहे महानायक अमिताभ बच्चन की तबीयत कैसी है। लेकिन उससे पहले देखते हैं किस तरह एक महिला कांस्टेबल ने एक मंत्री के बेटे को कानून का पाठ पढ़ाया। कर्फ्यू चालू છે ખબર છે? યસ. તમે બહાર કેમ આવ્યા ઘરેથી? આપણે બંને જાહેર સેવક છીએ. તમને કોણે પરમિશન આપી 9 વાગે પછી બહાર ના, નીકળવા? પરમિશન તો મને કોઈ આપે નહીં, પણ બોર્ડ છે કોના માટે? તમારા માટે છે, તમારા ફાધર માટે છે? મારા ફાધર માટે જ છે, તો હું કાઢી લઉં. તો કાઢો એને પહેલા તો. જો કે એ સાહેબને મેં ક્યારે ચૂપ રહો. 5 જણા બોર્ડ બંધ રાખના મે. મારી જતે. બોર્ડ બંધ રાખ. શું નામ છે? કુમારભાઈ કાનાણી, આરોગ્ય મંત્રી છે. આરોગ્ય મિનિસ્ટર મંત્રી. છે. ઓકે બરાબર સમજાવી દઉં. તમારી ગાડીમાં જે આ ગુજરાત લખ્યું છે શું છે? શું બોર્ડ માર્યું એમએલએ છે? ગુજરાત. એમએલએ ગુજરાત લખ્યું છે મેં. એમએલએ. તમે કુમારભાઈ કાનાણી સાહેબના સુપુત્ર છો એટલે તમને હક આપ્યો કોઈ બહાર નીકળવાનું? જો કે એ સાહેબને મેં ક્યારે ચૂપ રહો. અમે 5 જણા બોર્ડ બંધ રાખના મે. મારી જતે. બોર્ડ બંધ રાખ. અમે જાણે કેમ 5 જણા કોરોના ફેલાઈ દીધો. હા, તમે તો તમે એટલું બધા છે. બોર્ડ બંધ રાખી દીધું ને. એટલા બધા અગ્રેસિવ થઈ બોર્ડ બંધ ગયા. રાખ. गुजरात के सूरत में एक लेडी पुलिस कांस्टेबल ने एक मंत्री के बेटे का रौब सड़क पर ही निकाल दिया। तो તમે પહેલા ઘરની બહાર ન નીકળો, તમે પહેલા નિયમનું પાલન કરો. लाल टी शर्ट में ये है गुजरात के એકબીજાથી આગળ થાવ એમ. ઓકે. તમે અત્યારે કેમ આવ્યા છો અહીંયા? આ મારા ભાઈનો ફોન આવ્યો એટલે હું આવ્યો. તમને કર્ફ્યુ ચાલુ છે ખબર છે? યસ. ખબર છે. કેટલા વાગ્યાથી ચાલુ થાય? 9 વાગે 10 વાગે. 10 વાગ્યાથી. 10 વાગે પછી તમને ઘરમાંથી બહાર નીકળવાની પરમિશન કોણે આપી? મને જવાબ આપો. તમને જવાબ આપો. दरअसल कोरोना की वजह से सूरत में लॉकडाउन जारी है। रात 10 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है। बेवजह आने जाने की पाबंदी होती है, लेकिन मंत्री जी के बेटे को कायदे कानून की कोई फिक्र नहीं थी। મારી પાસે હક નથી મારો. આપણે બંને જાહેર સેવક છીએ, એકાબીજાનું કામ કરવાનું હોય. આ વસ્તુ ખોટી છે, આ ફોન ભી ખોટો છે, રેકોર્ડિંગ થઈ રહ્યું છે એ ભી ખોટું છે. હાલો તમે સાહેબ તમારી ઓળખાણ આપો પેલા. તમે કોણ છો સાહેબ? તમે કોણ છો? ગુજરાત સરકારમાં છો ને? કોણ છો તમે? બતાવો. ના, હું ગુજરાત સરકારમાં નથી. તો? મારા ફાધર છે ને હા. એ ધારાસભ્ય છે અને ધારાસભ્ય છે. શું નામ છે? કુમારભાઈ કાનાણી, આરોગ્ય મંત્રી છે. આરોગ્ય મિનિસ્ટર મંત્રી છે. ઓકે બરાબર સમજાવી દઉં. હવે તમારી ગાડીમાં જે આ ગુજરાત લખ્યું છે એ શું છે? શું બોર્ડ માર્યું છે? ગુજરાત. એમએલએ ગુજરાત લખ્યું છે મેં. આ એમએલએ જે છે એ બોર્ડ છે કોના માટે? તમારા માટે છે, તમારા ફાધર માટે છે? મારા ફાધર માટે છે, પણ અત્યારે હું મારી પાસે ગાડી નહોતી એટલે હું એની ગાડી લઈને ઓકે. આવ્યો. તમે એમની ગાડી લઈને આવ્યા એટલે તમારું ફરજ પહેલા શું બને? એમનું આ જે ઓળખાણ છે એ નીચે ઉતારો. તમારી પાસે હક છે આ બોર્ડ મૂકવાનો? અચ્છા, તો હું કાઢી લઉં. કાઢીને મૂકીને આવો પછી વાત કરો મારી સાથે. તો કાઢો એને પહેલા તો. इसके बाद मंत्री का बेटा गाड़ी से एमएलए का बोर्ड हटाता है। हालांकि इसके बाद भी मंत्री के बेटे की बहस महिला पुलिसकर्मी से जारी रहती है। તમે 9 વાગે પછી સાહેબ બહાર નીકળ્યા છો તો તમને કોણે પરમિશન આપી 9 વાગે પછી બહાર ના, નીકળવા? પરમિશન તો મને કોઈ આપે નહીં, પણ ફરજ પડી મને. મારો ફરજ ભાઈબંધ. પડી. તમને નિયમ કાનૂન લાગુ નથી પડતા? ના, તમે સમાજ સેવક છો? હા, સમાજ સેવક છો સમાજ સેવા તો કરીએ છીએ. તમારું ફરજ શું બને કે આ લોકો જે કઈ કરતા એ લોકો રોકવાનું હોય, એ લોકોને આગળ પેલું કરવાનું હોય, ના, રોકવાના જ હોય. રોકવાનું સમજાવવા જ હોય. આવ્યા છે. તો સમજાવ આવ્યા? ફોન ઉપર નથી સમજાવવા હતું તમારાથી? તમે અહીંયા આવ્યા જ કેમ આવ્યા તમે? ના, એમને એવું कि मजबूर नहीं है, वो चाहे तो किसी को भी मजबूर कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आगे बढ़ते हैं, आपको दे देते हैं कोरोना अपडेट। जी हां, कोरोना संक्रमण को लेकर क्या है दिल्ली से अच्छी खबर, यह हम आपको बताने वाले हैं। दिल्ली से अच्छी खबर क्या है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देश का और दिल्ली का कोरोना अपडेट क्या है यह हम आपको बता देते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 28,701 केसेज आए हैं, नए केसेज आए हैं। 8,78,254 लोग संक्रमित हैं। 5,53,471 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं, यानी कि ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा ज्यादा है बनिस्पत उन लोगों से जो कि संक्रमित हैं। संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर है 63% से थोड़ा ऊपर। 3,01,609 मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण से 23,174 लोगों की मौत हुई है। देश का पॉजिटिविटी रेट 13.09% है। पॉजिटिविटी रेट का मतलब है प्रति 100 सैंपल की जांच में कितने संक्रमित मिले हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 1,573 नए केसेज आए हैं।
24 घंटे में 2276 मरीज इलाज से ठीक भी हो गए हैं। तो रिकवरी रेट में देश में दूसरे नंबर पर है दिल्ली और देश का रिकवरी रेट है 63%। तो दिल्ली में कोरोना के कंट्रोल का जो फॉर्मूला है वो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट है। देश का नीति आयोग भी अब ये कह रहा है कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट की वजह से अब हालात काबू में दिख रहे हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। क्या कहा उन्होंने ट्वीट में, आपको बताते हैं कि 45,784 दिल्ली ने अब प्रति लाख आबादी में सबसे अधिक परीक्षण किए हैं। भारत सरकार जब निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हुई तब से जांच में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। बड़ी खबर यह है कि अब दिल्ली में मामले कम हो रहे हैं। हम ये ना भूलें कि जब तक हम जांच नहीं करते हैं तब तक ना तो ट्रेस कर सकते हैं ना ही इलाज कर सकते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा है कि राजधानी में कोरोना संक्रमण से हालात काबू में। दिल्ली के लिए अच्छी खबर है, राहत के संकेत हैं ये, और जो मैं लगभग पिछले 10-12 दिन से कह रहा हूं कि एक स्टेबिलिटी आई है। अब स्टेबिलिटी में और रिकवरी हो रही है। रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है, टेस्टिंग हम सबसे ज्यादा करा रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में बेड्स करीब 15,000। बिल्कुल सचिन, देखिए सबसे बड़ा फर्क तब आया जब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में बेहतर तालमेल होना शुरू हुआ और राजनीति खत्म करके दोनों एक ही ट्रैक पर काम करने के लिए तैयार हुए। आज की अगर बात करें तो सबसे बड़ी खबर यह है कि जब देश का रिकवरी रेट 63% है तब दिल्ली का रिकवरी रेट 80% है। यानी कि दुनिया की जो टेबल है इस वक्त, देश की जो टेबल है रिकवरी में, उसमें सबसे ऊपर लद्दाख है 85% के साथ, लेकिन वहां इतने मामले नहीं है। दिल्ली के लिए ये वाकई कामयाबी वाली बात है। जहां लगातार मामले आ रहे थे, देश में दूसरे तीसरे नंबर पर दिल्ली शहर चल रहा था रोज पॉजिटिव मामले आने में, उसमें रिकवरी रेट 80% है। तो इसमें एक सबसे बड़ा योगदान इसका भी है कि टेस्ट तेजी से होने शुरू हुए। रैपिड टेस्टिंग के जरिए लोगों की पहचान की जाने लगी और कोशिश ये की जा रही है कि अब दिल्ली की जो लगभग पूरी पॉपुलेशन है जुलाई के महीने में सबका टेस्ट हो जाए, ताकि एक बार भले ही आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए लेकिन कंट्रोल भी आसान हो जाए और रिकवरी और ज्यादा तेज हो। इसीलिए कल पीएम ने यह भी कहा सचिन कि देश को दिल्ली मॉडल अपनाना चाहिए और इसी तरह से लगाम लगानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। देश को दिल्ली मॉडल अपनाना चाहिए, यानी कि ट्रेसिंग से ही सबसे बड़ी जो है हम ये कह सकते हैं इलाज की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है और उसी से पता लग सकता है कि किस तरीके से आप आगे आपका फॉर्मूला क्या कोरोना से निपटने के लिए। वहीं कोरोना संक्रमण के काल में सीबीएसई के छात्रों के लिए आज अच्छी खबर आई है। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजों में 88.68% छात्र छात्राएं पास हुए, 88% से ऊपर है। पिछले साल के मुकाबले 5.38% यानी कि 5.38% ज्यादा विद्यार्थी पास हुए हैं। इस साल भी छात्राओं ने बाजी मारी है। 92.15% छात्राएं पास हुई हैं। छात्रों के मुकाबले 5.96 छात्राएं ज्यादा पास हुई हैं। दिल्ली में 94.39 छात्र छात्राएं पास हुए हैं। पूरे नतीजे सीबीएसई results.nic.in पर उपलब्ध। वहीं आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है। सावन में सोमवार का खास महत्व होता है। भोले के भक्त आज के दिन व्रत रखते हैं और सुबह से ही भक्ति में लीन हो जाते हैं। हालांकि कोरोना को देखते हुए इस बार मंदिरों में भक्तों की भीड़। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.